Hello friends, I am CA Sonali Jindal. This is our second lecture of Economic Concept with PYQ series. Here in this video, we will take up firstly balance of payment, then currency convertibility, exchange rate, and in the end real and nominal exchange rate. PYQs for this topic will be covered in next part. For that, I will give link in the description after uploading the video. Before starting the video, I request you to watch firstly two parts for better understanding. There you can directly see the topics in which you are not comfortable, as I have used timestamp feature. So let's start our video. I have tried to use pictures as much as possible in lecture for better understanding. बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो कि इंडिया के रेजिडेंट और दूसरे देश के रेजिडेंट के बीच में हुआ है. ये कौन रिकॉर्ड करता है? आरबीआई. ये दो टाइप्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. वन इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अदर इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. लेट्स सी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स विजिबल गुड्स ट्रेड, दैट गुड्स which we can touch and feel. For example, car. Other one is invisible trade that we can't see and touch. For example, software. Other one is net transfers that include donation, gifts. These are short-term transactions. This does not make any effect on asset and liability. For example, if a person from India imports a car, what it has to give? It will give dollar. What it is? It's an import of goods. It's a current account transaction. Let's see another example. If a person from India exports software, what it is? It's an invisible trade. Here, dollar is coming in India, so it will show the positive balance in the current account transaction. Other example is if Modi ji of India receives gift from the Australia, it's a donation or gift or any grant. It is a unilateral transfer because we don't have to give anything in return. It's a current account transaction. If a person sitting in US getting salary or wages sends money to his mother in India, this transfer of money called as remittances. This is also transfer. If a person who has invested in any US company, that person will get in return interest, profit or dividend. This is also a current account transaction. Now, if a import in any country is higher than the export, it means dollar ज़्यादा जा रहा है बाहर, कम आ रहा है अंदर. It means it's a current account deficit. And if there is a high export than the import, it means there is a current account surplus. अब करंट अकाउंट सरप्लस का क्या नुकसान है? अगर किसी भी कंट्री में करंट अकाउंट सरप्लस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है. अगर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है, सिंपल इकोनॉमिक्स रूल, सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा. अगर डॉलर का प्राइस कम हो गया मीन्स रुपी एप्रिशिएट हो गया. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर का प्राइस 80 रुपीज़ से 78 रुपीज़ हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रुपी एप्रिशिएट हो गया. हमें कम रुपी देना पड़ रहा है $1 को बाय करने के लिए. और अगर वही डॉलर का प्राइस 80 रुपीज़ की जगह 80 रुपीज़ हो जाए, इसका मतलब है रुपी डेप्रिशिएट हो गया. मतलब हमें $1 को बाय करने के लिए ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं. अब रुपी एप्रिशिएट होने से क्या नुकसान होगा? रुपी एप्रिशिएट होने का मतलब है कि यूएस में हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली हो गया, उससे एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे. और वाइस वर्सा, इन रुपी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, बट इट विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक यूएस में इंसान को गुड्स पड़ती थी 80,000 रुपीज़. उसके लिए उसको पे करने पड़ते थे 80,000 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज़ $1. अगर डॉलर का रेट कम हो गया, दैट इज़ 78, अब उसको कितने पे करने पड़ेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 78, 1025.
और वही ऑपोजिट अगर उसको 82 हो जाएगा तो 80,000 डिवाइडेड बाई 82 925 के राउंड होगा। और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, तो उस वजह से एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर रुपी एप्रिशिएट होता है तो उससे एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा। लेट्स सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई, एफआई, इसको डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड में। अब और होता है लोन या फिर तो कोई मोर देन 10% होना चाहिए। तो इसमें एफडीआई में क्या है कि उसको कंट्रोल मिल जाएगा और वो एग्जिट इजी नहीं होगा और वो एक्सपर्टीज या टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा कंट्री के अंदर। और वही हम देखेंगे कि एफआईआई और एफपीआई में क्या है। एफआईआई एफपीआई यूजुअली 10% से कम होती है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं मिलता कंपनी का और ये ओवरनाइट फ्लाई कर जाती हैं, तो इसी वजह से वो वॉलेटाइल होती है। अब अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप को यहाँ पे इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो पहले लाइसेंस लेगा सेबी से, फिर उसके बाद कोई भी इंडियन कंपनी जैसे कि रिलायंस उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अब अगर किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि यूएस में है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले सब अकाउंट खोलेगा वो एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर, फिर उसके बाद वो रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकता है। अब मतलब अगर इन्वेस्टमेंट ग्रुप को करना है तो वो लाइसेंस लेगा, फिर वो इन्वेस्ट कर देगा रिलायंस में। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को करना है सब अकाउंट खोलेगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप, फिर वो इन्वेस्ट कर पाएगा रिलायंस के अंदर। अब देखते हैं कि एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है। एफडीआई जो है हमने देखा कि क्या होती है मोर देन 10% और एफआईआई लेस देन 10%। और एफडीआई में क्या होता है, कोई कंट्रोल मिलता है, लेकिन एफआईआई में कोई कंट्रोल नहीं मिलता है कंपनी में। और वही एफडीआई जो है इक्विटी होती है और या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और ये डेट और इक्विटी दोनों होती हैं। एफडीआई जो है लेस वॉलेटाइल है क्योंकि एग्जिट इजी नहीं होता। एफआईआई जो है वो वॉलेटाइल है क्योंकि ये इट कैन फ्लाई ओवरनाइट। एफडीआई इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर फैमा and Foreign Investment Promotion Board under Ministry of Finance. FII is regulated under, if it is an individual, regulated by SEBI. If it's an institution, then by RBI. अगर राकेश झुनझुनवाला को ने बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन यूएस कंपनी, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब अगर उसी इन्वेस्टमेंट पे इफ ही इज गेटिंग एनी इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एनी डिविडेंड, what it is, it's a current account transaction. अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को हमने 3 में डिवाइड किया। एक है विजिबल गुड्स ट्रेड, फिर है एक इनविजिबल ट्रेड, फिर है हमारे नेट ट्रांसफर्स। जो है विजिबल गुड्स ट्रेड ये मोस्टली डेफिसिट होता है। इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज जो है वो हमारी सरप्लस में होती हैं, मतलब ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। और वही इनकम जो है प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वो डेफिसिट होता है क्योंकि इनफ्लो ऑफ एफडीआई या इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा आती है, बाहर जाती कम है। रेमिटेंसेस, डोनेशन और गिफ्ट्स ये भी सरप्लस होता है। जो ओवरऑल है वो हमारा ऑलमोस्ट डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है इंडिया में। अब देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का क्या है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में हमने देखा इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआई, लोन बाय द sovereign government or any company that is called as external commercial borrowings, and other one is banking capital that includes NR deposits. FDI, FI usually surplus and loan is also usually surplus. Banking capital also a surplus, although outflow ज़्यादा होता है लेकिन वो mostly black money के रूट से होता है, तो on the books it shows surplus. Capital account transactions almost surplus in India. तो नेट तो हमने देखा कि जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट आता है इंडिया में और कैपिटल अकाउंट सरप्लस। अब ये अप्रैल टू जून का डाटा है जहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अराउंड $23 बिलियन है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस जो है $23 बिलियन है। अब अगर एरर्स एंड ओमिशंस एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नील आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑफसेट हो जाता है कैपिटल अकाउंट सरप्लस के
द्वारा। अब अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट अराउंड $30,000 हो और कैपिटल अकाउंट सरप्लस $40,000 हो और एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद दैट इज अराउंड $1,000, भी हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव $9,000 आ जाए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो इंडिया में डॉलर का इनफ्लो है वो ज्यादा है, मतलब डॉलर की सप्लाई जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू रुपी। अब रुपी की सप्लाई कम है एज कम्पेयर टू डॉलर, मीन्स ज्यादा लोग डॉलर को बेचने वाले हैं, तो रुपी की वैल्यू क्या करेगी, एप्रिशिएट कर जाएगी। हमने वो 80,000 बाय 80 रुपीज की एग्जांपल के साथ समझा था। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है हमारे रिड्यूस हो जाएंगे और जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इम्पोर्ट इंक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि जो कॉस्ट है उसकी गुड्स की वो रिड्यूस हो जाएगी, इम्पोर्ट विल बी चीपर। अब अगर हम डॉलर को इक्वेट करते हैं पोटैटो के साथ, अगर एक डॉलर को पोटैटो समझते हैं, लेट्स सी अगर बहुत सारे फार्मर्स हैं बेचने वाले आलू को, मतलब देयर आर मैनी फार्मर्स टू सेल पोटैटोज, अब इसके बायर्स जो है वो कम है। अब अगर किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल में आलू क्या है, डॉलर, तो डॉलर की प्राइस क्या हो जाएगी, कम। अब अगर डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी, इसका क्या मतलब है कि रुपी जो है कम चाहिए डॉलर को बाय करने के लिए। उसके साथ क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी एप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट रिड्यूस होंगे। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में आरबीआई क्या स्टेप लेती है। अब अगर वही कि डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस है और हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ जाता है, पॉजिटिव $9,000। अब इस सिचुएशन में आरबीआई क्या स्टेप लेगी, आरबीआई क्या करेगी, उस डॉलर जो एक्सेस सप्लाई है मार्केट में उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। ऑब्जर्व करेगी मीन्स इट विल बाय दैट डॉलर। अब अगर आरबीआई उस डॉलर को बाय करती है, उससे क्या होगा, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाए $40,000 और कैपिटल अकाउंट सरप्लस $30,000, अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद भी हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव हो $9,000। अब इस सिचुएशन का क्या मतलब है, इस सिचुएशन का मतलब है कि डॉलर की सप्लाई कम है। अब डॉलर की सप्लाई कम है तो इससे क्या होगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है उसका मतलब होता है रुपी विल डेप्रिशिएट। डॉलर सप्लाई लेस, इट मींस रुपी सप्लाई इज मोर एज कंपेयर टू डॉलर, तो रुपी विल डेप्रिशिएट। अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है तो उससे क्या होगा, तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब हम वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं कि हमारा जो पहले $1 80 रुपीज का था, अब वो 78 हो गया, मतलब रुपी एप्रिशिएटेड। अब अगर वही $1 80 रुपीज की जगह $82 रुपीज का हो गया तो इसका क्या मतलब है, रुपी डेप्रिशिएटेड। हमने देखा कि रुपी एप्रिसिएशन के टाइम एक्सपोर्ट क्या होता है, रिड्यूस, और वही अगर हम रुपी डेप्रिशिएट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे क्योंकि इंडिया जो है क्रूड ऑयल और मोस्टली हमारा करंट अकाउंट जो है डेफिसिट रहता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। अब हमारे पास अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इट मीन्स देयर इज अ लेस सप्लाई ऑफ डॉलर एज कंपेयर्ड टू रुपी। सो मार्केट में डॉलर खरीदने वाले बहुत हैं, तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज कर देगी। और फॉरेक्स रिजर्व्स को अगर आरबीआई रिलीज करती है मार्केट में तो इससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे।
अब फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो गए, तो इसका मतलब बीओपी क्राइसिस आना नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई या फिर तो डॉलर बाय कर लेगी या रिलीज कर देगी। बट अब फिर बीओपी क्राइसिस 1991 में आया क्यों? अब अगर हम तब की सिचुएशन देखते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई था और कैपिटल अकाउंट सरप्लस कम था उसके कंपैरेटिवली, और हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स उस टाइम थे वो कम थे एज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव बैलेंस। अगर आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व सारे रिलीज भी कर देता तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव बैलेंस सेट ऑफ नहीं होना था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम आईएमएफ से लोन लेने गए, तो आईएमएफ लोन लेके हमने उसको सेट ऑफ किया उसने, लेकिन हम पर कुछ कंडीशंस लगाई, उसी के बेसिस पे हम एलपीजी लेके आए थे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या है? मतलब जो कैपिटल अकाउंट सरप्लस है वो इनसफिशिएंट हो जाए किसको फाइनेंस करने के लिए? हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? बीओपी क्राइसिस। अब बीओपी क्राइसिस का सोल्यूशन क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट को लो करना, मतलब जैसे जो हम इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल, उसके ऑल्टरनेटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना या फिर एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना, और हम करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर दे, जैसे कि एफडीआई को अट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे जो गवर्नमेंट है वो लिबरलाइज कर रही है एफडीआई पॉलिसीज। अब क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, सेकेंड इज गोल्ड, थर्ड इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये हमारे आईएमएफ के अंडर होते हैं, और है रिजर्व ट्रांच। ये एसडीआर और रिजर्व ट्रांच हम इसको आईएमएफ चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, और ये चारों के चारों जो है फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं। ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या इंक्लूडेड होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होता क्या है? ये वो सिचुएशन है जिसमें हम जो डोमेस्टिक करेंसी है, मतलब रुपी को हम कन्वर्ट कर पाए किसी भी फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल डॉलर। अब ये करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, फॉर एग्जांपल मिस्टर सिंह ने बाहर एक कार खरीदनी है, अब उसके पास डॉलर तो नहीं है, उसके पास रुपी है, तो वो बैंक के पास जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के पास वो गए, उन्होंने उनको रुपी दिया और बदले में डॉलर ले लिया। अब उन्होंने जो कार को इंपोर्ट किया है, दिस इंपोर्ट ऑफ कार, व्हाट इट इज, इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब ये फ्रीली इसको कन्वर्ट करवा पाए रुपी को इनटू डॉलर with this current account transaction because there is a full convertibility in current account transaction। अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब रतन टाटा जी ने जैगवार कंपनी को एक्वायर करना था तो क्या वो फ्रीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे? जी नहीं, बिकॉज वो एक एफडीआई का आउटफ्लो है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इंडिया में अभी फुली कन्वर्टेबल नहीं है, इट्स अ पार्शियल कन्वर्टेबल। अब इंडिया में करंटली फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है और पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब ये जो पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, इंडिया ने किसकी रिकमेंडेशन पर अडॉप्ट किया? इंडिया अडॉप्टेड पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तारापोर कमिटी। तो इसने कुछ कंडीशंस बताई जिसके बेसिस पे इन फ्यूचर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ इंडिया मूव करेगा, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन की कंडीशन और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और फॉरेक्स रिजर्व्स की कुछ लिमिट एटलीस्ट 6 मंथ्स का इंपोर्ट करने के लिए हो। और रीजन क्या है कि हमने पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रखी है ताकि हम वॉलेटिलिटी कम कर सके और गवर्नमेंट जो है कुछ सेक्टर्स पर कंट्रोल रख सके, जैसे कि इंश्योरेंस, डिफेंस। और इंडिया में जो है अगर हम फ्यूचर में फुल कन्वर्टिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट मूव करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज
लिबरलाइजेशन। लेकिन कुछ कंडीशंस करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर भी है, जैसे कि बैटिंग के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर और कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और सेकंड, जैसे आप नेपाल या भूटान में ट्रेवल करते हो तो कितना डॉलर अमाउंट आप रख सकते हो, उस पर भी कुछ कंडीशंस हैं। अब हम करते हैं एक्सचेंज रेट रिजीम। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, हमें डोमेस्टिक करेंसी कितनी चाहिए टू बाय फॉरेन करेंसी। अब ये 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे क्या वैल्यू होगी, और फ्लोटिंग जो है डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। अब अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में चेंजेस आते हैं तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, अगर फ्लोटिंग में आते हैं तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अब इन 2 एक्सचेंज रेट रिजीम्स में इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है, अगर हम देखें कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में क्या होगा कि फुली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, फ्लोटिंग में इन द हैंड्स ऑफ फुली इन द मार्केट, बट आरबीआई अडॉप्ट्स इन बिटवीन, दैट इज मैनेज एक्सचेंज रेट रिजीम। इसमें मतलब आरबीआई इंटरवेन करेगा अगर वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी। अभी कैसे करेगा, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सी, अगर रूपी जो है एप्रिशिएट करे इन मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में क्या होगा। लेट्स सी, इफ रूपी एप्रिशिएट, इसका क्या मतलब है, अगर डॉलर की वैल्यू 50 की जगह 40 हो जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो डॉलर की सप्लाई है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रूपी, तो उसी वजह से रूपी की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। इसके लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा जो एक्सेस सप्लाई है डॉलर की। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रूपी विल डीवैल्यू। और इन ऑपोजिट, अगर रूपी जो है मार्केट में डेप्रिशिएट हो जाए तो इसका क्या मतलब है, जहां पहले डॉलर जो है ₹50 का मिलता था उसकी जगह $1 जो है 60 रुपीज का मिलने लगे। तो इसका मतलब क्या है, जो है रूपी की वैल्यू जो है बट कम हो गई है, मतलब डॉलर की सप्लाई कम है। अब इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई विल सेल डॉलर, तो डॉलर की सप्लाई जो है फुलफिल हो जाएगी मार्केट में, तो रूपी विल रीवैल्यूएशन। अब इसकी समरी देख लेते हैं कि दोनों कंडीशंस में आरबीआई क्या एक्शन लेगा। अगर रूपी जो है अप्रिशिएट हो जाए तो इसमें आरबीआई क्या करेगा, इट विल बाय डॉलर। और अगर रूपी डेप्रिशिएट हो जाए तो आरबीआई क्या करेगा, इट विल सेल डॉलर। Take screenshot of this slide to remember. Now let's do near and rear topic. Nominal exchange rate and real exchange rate. पहले देखते हैं नॉमिनल रियल में क्या डिफरेंस है। नॉमिनल और रियल में जो डिफरेंस है वो है इन्फ्लेशन का। इसका मतलब अगर आप नॉमिनल में इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म कर दे तो वो रियल बन जाएगा। अब अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म कर देंगे तो वो रियल एक्सचेंज रेट बन जाएगा। अब हमें इसका फॉर्मूला देखना है कि हम नॉमिनल से रियल की तरफ पहुंचेंगे कैसे। इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट में से अगर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे खत्म करते हैं। नॉमिनल इनटू इंडिया की इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी जिसकी हम निकाल रहे हैं एक्सचेंज रेट, उसका इन्फ्लेशन, फॉर एग्जांपल यूएस का इन्फ्लेशन। अब इसको हम वेटेड मीन एवरेज ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 करेंसीज का या फिर 36 करेंसीज का निकालने के लिए रीर और नीर। This is the end of this part. PYQs will be covered in the next lecture. Do watch that for application of concepts. If you have any doubt, you can reach out to me on Instagram and Gmail. Link is given in the description. Please like, share and subscribe. Thank you.